कंपनी को लगता है हमने एक बार डेटा ले लिया तो वो डेटा हमारा है, वी आर द ओनर. सो इट्स नॉट लाइक दैट. डेटा जो है वो इंडिविजुअल्स का है, आपके पास सिर्फ वो कस्टडी में है. इट शुड बी प्राइवेट. दैट्स व्हाट प्रिवेसी बाय डिफॉल्ट सेज. सोशल मीडिया में ना वो होता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी प्रिवेसी सेटिंग हाई रहेगी. बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रोफाइल होगा ना वो प्राइवेट होगा. यू कैन मेक इट पब्लिक आपकी चॉइस से, बट बाय डिफॉल्ट ये नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ से ऑप्ट आउट कर सकते हो कि कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी को, पार्टनर्स को आपका डेटा ना दिया जाए. द गोल ऑफ द कंपनी शुड बी कि हमारे यूजर्स को पता हो कि हम उनका डेटा क्यों ले रहे हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहा है. अगर आप बाहर हो कहीं पे और आपने ईयू के लोगों को कोई सर्विसेज दी थ्रू लाइक सम ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेबसाइट के थ्रू, अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो कि ईयू वाले लोग भी अपना डेटा सबमिट करके कुछ सर्विसेज ले सकते हैं, तो भी वो एप्लीकेबल होगा. जस्ट बिकॉज it's more about how more power should be given to the individual. Like if I am sharing data to one or other company, how my data should be in my control even if I have shared that data. That's what they are doing. मतलब unapproved AI जो वो use कर रहे हैं and उनको पता भी नहीं consequences क्या है. For them they are just being efficient, productive, है ना? They are being smart, कम समय में काम कर रहे हैं. How is DPDP different from GDPR? वेलकम टू दी तेंदर कल्ची शो. कभी आपने अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी वाया दी व्हाट्सएप या ऑनलाइन अपलोड किया है, और एल्स कभी आपने किसी वेबसाइट पे जाके आई एग्री पे क्लिक किया एंड देन यू आर थिंकिंग कि मेरे इन्फॉर्मेशन का, मेरे डेटा का एग्जैक्टली होता क्या है? इफ दैट क्वेश्चन हैज कम टू यू देन दिस एपिसोड इज एक्चुअली फॉर यू. जो भी आप अपना इन्फॉर्मेशन, अपनी डेटा शेयर कर रहे हो ऑनलाइन, हाउ इज दैट बीइंग हैंडल्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दैट एंड सो ऑन. दोज क्वेश्चंस विल बी आंसरिंग इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ द तेंदर कल्ची शो. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, शी इज़ वर्किंग इन टू दिस डोमेन. शी इज़ एक्चुअली वर्किंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ वेयर द लॉ एंड द टेक्नोलॉजी comes hand to hand. Let's welcome our guest for today, who is Sangeeta Mandal. She is a data privacy professional. She is also a CIPP, that is Certified Information Privacy Professional. So she is the one who helps the organization comply with the privacy regulations as applicable through the globe. So let's welcome our guest for today. Hi Sangeeta, thank you for being a part of the show. Yeah, hi Tajinder. And first of all, I would like to thank for having me. Okay. And I'm really grateful for this opportunity. Like I am really interested in telling people what I do. So yeah, even in my day-to-day life, even my relatives don't understand what I am doing, right? Why I am in privacy. You have done law. What are you doing there? Like what do you do in organization? Why don't you go to court and all? So yeah, and most of my friends also don't understand what is my job. Okay, so I'll take a pause there, just for the listeners' information. So she's actually done her studies into the law domain. So she's a lawyer by degree, but a data privacy professional by profession. Okay, so we'll understand like why this shift has happened, why she moved into the privacy and so on. But just to keep you informed. Okay. Yeah. So to start with, like a brief introduction about me. You have already explained what I do and what are my qualifications and all. So I am like by qualification or by degree or by like education, I am a lawyer. I have completed BA LLB and I am completely into the data protection regulations. Like I help organization in complying with the data protection laws around the globe, majorly with GDPR and any other like local laws. I help them in understanding what applies to them, how they can like comply with the regulation, how should they handle data, how should they handle like individuals data. So ultimately I am handling business, like I am making that balance between business interest and the individual's interest. Okay. So basically I am the Spock for the individuals whose data is being collected, but Okay. from the company, right? Okay. So when I say like people use this social media platforms like Instagram, Facebook and many others so on. Yeah. Okay. तो वहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन अपना शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको अच्छे से हैंडल करे with all the regulations being handled properly. So you are the intersection for that, right? Yeah. You are representing us to in the organization. ensure that the organization follows all the regulations. So I am the Spock for all the individuals. Like if you are sharing the data to a particular company, I help them
I help the I talk on behalf of the individuals that what should happen with their data, how it should be protected, how their rights should be protected. So let's come back one step and again coming back to your degree thing. तो आपने लॉ किया, डेटा प्रिवेसी थोड़ा अलग डोमेन है. Yeah. Yes, law is a background for that, but still, why exactly data privacy and nothing else? Yeah. So in my during my college, I was exploring all other domains, like every domain, just like any other law student. I tried chambers, I tried litigation, and I tried like arbitration and IPR as well. But suddenly, like one of my senior, come up with this. Like he was doing really great. Like Okay. not something very common. Like he was doing something different. So it excites me. Like, Okay. then I reach out to him. Like, what are you doing? Like, yeah, what is this domain? Can I do so? Okay. He introduced me about data privacy, and suddenly it's like कि data privacy ऐसी चीज है ना, like data हर कंपनी ले रही है, हर कंपनी. कोई भी Data कंपनी is उठा लो. the oil now. So even if it is a B2B company, ultimately वो भी data handle कर रही है कहीं ना कहीं से, है ना. So ऐसा है कि इसमें exposure बहुत ज़्यादा है. Right. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाओ, किसी भी सेक्टोरल मतलब किसी भी सेक्टर में घुस जाओ, ये डेटा प्रिवेसी हर जगह है. एंड every country is like coming up with their own laws, and this law has some like regulatory repercussion, right? The authority, there is some authority, they can investigate whether you are complying with that or not, and then the fines are like really high. So this is what I saw in that, like the potential. Okay. Working in every domain, you can work whatever domain you want. Like obviously that needs some expertise, but there is a chance, there is an exposure, right? There is an intersection between, as rightly said in the earlier in the beginning of the session, that it is a intersection of law, tech, and I would also say it is an intersection of law, tech, and business, like Okay. management. Yeah. So yeah, I find it like more it will provide me more exposure than any other field. Okay. So it excites me. Yeah. Okay. So supposing जैसे आपने कहा कि आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स भी पूछते हैं like why you're not sitting in a chamber or not Yeah. going to the court but to some office. If given a chance, a good opportunity in the court or something in data privacy domain itself, which one would you prefer? Obviously, since I am working in this domain from the very beginning, like almost 3 years now, like in some or other way I am constantly working in it. So I would definitely choose data privacy over any other like domain. Yeah. ओके ओके जब हम डेटा प्रिवेसी की बात करते हैं, या तो कई लोग इसको समझते ही नहीं है. ओके, इन जनरल जनरल ऑडियंस डजंट अंडरस्टैंड कि डेटा प्रिवेसी एग्जैक्टली होता क्या है. और एल्स इवन इफ सम पीपल डू अंडरस्टैंड, उनके लिए डेटा प्रिवेसी इज ऑल अबाउट पॉलिसीज एंड दोस पॉपअप्स, आई एग्री, Yeah. डिक्लाइन एंड सो ऑन. हाउ वुड यू एक्सप्लेन डेटा प्रिवेसी टू अ पर्सन हु इज नॉन टेक? Yeah. So within an organization, if I say, so even in my current organization where I am working, people don't know what I do, right? They think either I am part of legal or IT or like some other operational department, right? Okay. So they don't understand what I do. But once I start working with them, they understood that there is something, there is a law which need compliance, but it's much more than the policies, Right. right? The policies and the pop-ups. So policies, what policies we are talking here? It's about data, like privacy policy, which is one of the tool to make like individuals aware what are we going to do with their data, like the entire handling of their data, what data we are taking, how we will be using it. The transparency thing is like ensured by that privacy policy. And that pop-ups are majorly about to take consent. But when we talk about data privacy, it's much more than the policies. Policies is one of the governance tool, we can say. We can govern how data should be handled, but it's more about how much like more power should be given to the individual. Like if I am sharing data to one or other company, how my data should be in my control, even if I have shared that data to some organization. Yeah. So I should be in the more control. I should choose whether I want to share the data, to what extent I want to share the data, whether my data is like further being shared to some other organization or not. So it's about more like control in the hands of the individuals themselves, right? वो जो होता है ना कि कंपनी को लगता है हमने एक बार डेटा ले लिया तो वो डेटा हमारा है, we are the owner. So it's not like that. Data privacy
tells them that data जो है वो individuals का है, आप सिर्फ उसकी मतलब आपके पास सिर्फ वो कस्टडी में है, and you have to protect their rights, you have to protect the data, you are not the owner. Owner Okay. वही है, individuals है owner. ओके, सो इट्स लाइक कि अगर मैंने लेट्स से बैंक में एक अकाउंट ओपन किया एंड आई वाज फिलिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो मैंने एक जगह पे एक टिक लगाया कि ओके आई वांट टू बी कॉन्टैक्टेड फॉर लेट्स से और इन्फॉर्म्ड, माय नंबर शुड बी यूज्ड फॉर शेयरिंग द ओटीपीज, ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड सो ऑन. आई चेक्ड इट, और नीचे एक और चेक बॉक्स है दैट सेज आई should be contacted for all the marketing campaigns and all. मैंने उसको चेक नहीं किया. So how will data privacy handle that? So जैसे इसमें अभी आपको दो ऑप्शंस दिए गए. जनरली अभी तक कंपनीज क्या करी है, जहाँ पर भी लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है, इवन इन इंडिया, इंडिया में तो छोड़ो कंसेंट ही नहीं लेते लोग, तो सीधा कांटेक्ट करते हैं ना, आप हमें अपना नंबर दे दो, हम इंडिया आगे में का तो देख ऐसे लेंगे. चलता है, रिप्रेजेंटेटिव आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म लेके आता है, कहता है सर यहाँ पे आप साइन कर दो, या अपनी फोटो दे दो, बाकी हम देख आप लेंगे. भर लेंगे. बाकी हम भर लेंगे, हम आपको कांटेक्ट भी कर लेंगे, आपसे ओटीपी वगैरह सब कुछ ले लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. बट ये जो आपने दो ऑप्शंस बताए ना, ये स्ट्रिंजेंट प्रिवेसी लॉ से ये मतलब डिराइव हो रहा है, ये जो प्रैक्टिस है. पहले ऐसा नहीं होता था. लोग अगर हम देखें भी प्रिवेसी लॉ में बहुत, जब इनिशियल स्टेज पे होगा, इनिशियल स्टेज पे, तो क्या होता था, बंडल कंसेंट होता था. उसमें एक चेक बॉक्स लगाया, वी वुड यूज योर डेटा for this communication and marketing communication, it includes this. करेक्ट. आपने उस पर चेक किया, अब वो उस डेटा को XYZ पर्पस के लिए यूज करें जो आपको पता भी नहीं है, वो किसी से भी शेयर करेंगे, आपको पता भी नहीं है. राइट. बट ये जो दो ऑप्शंस दिए ना, ये ग्रैनुलर चॉइसेस जो दे रहे हैं, दैट कंसेंट शुड नॉट बी बंडल, इट इज लाइक स्टेम्ड फ्रॉम GDPR कहता है कि आप हर एक पर्पस के लिए अलग कंसेंट लो. सो दैट्स व्हाट रेगुलेशन लाइक इंश्योर्स. आपने दो अलग अलग कंसेंट लिया, फर्स्ट वाले पर्पस के लिए अगर किसी ने टिक किया है, जस्ट स्टिक टू दैट पर्पस. अगर किसी ने मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑफ नहीं किया है, प्लीज डू नॉट डू दैट. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू ऑप्ट आउट एंड इवन कंप्लेन. ऑप्ट आउट तो तब होगा जब हमने कंसेंट दे दिया, उसके बाद भी हम कंसेंट वापस ले सकते हैं कि अब हमें नहीं चाहिए आपका कम्युनिकेशन. सो दैट्स व्हाट लाइक लॉ इंश्योर्स, दे हैव देयर राइट टू ऑब्जेक्ट कि हमने कभी भी ये इस कम्युनिकेशन के लिए अग्री नहीं किया था. So you mentioned GDPR. What exactly is GDPR, like for the So, general public again? yeah. So GDPR is like it's an EU regulation, General Data Protection Regulation, and it has set a global standard for data protection. Okay. So जितनी भी लॉज आ रहे हैं ना, सब GDPR को एक गोल्डन स्टैंडर्ड मानती है. Okay. GDPR ने हर चीज़ को बहुत ही लाइक कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें हर चीज़ मेंशन कर दी. आपको डेटा कितना लेना है, कुछ प्रिंसिपल्स उसमें कि आप डेटा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोगे, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद द इंडिविजुअल जिसका डेटा आप ले रहे हो. आप उनको बताओ ये कैटेगरी, इस कैटेगरी की डेटा आपको क्यों चाहिए, Okay. कितने टाइम के लिए चाहिए, आप किससे डेटा शेयर करो. ये नहीं कि वी विल शेयर इट विद आवर पार्टनर्स. यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विच कैटेगरी ऑफ पार्टनर्स यू आर शेयरिंग योर Okay. डेटा, And why their exactly data it with. being Yeah, shared? why exactly, how long they will be storing, whether they will be transferring to some other countries or not. फिर उसके बाद राइट्स एंड ऑल, लाइक GDPR में इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. उन्होंने राइट्स दे दिए, राइट्स को कैसे इन्फोर्स करना है वो दे दिया. सो अथॉरिटीज़ भी वहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई है, जो कि ये क्वेश्चन कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन से कि आपकी कंप्लायंस स्ट्रक्चर दिखाओ आप. Okay. राइट. सो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, एंड ऑलमोस्ट एवरी अदर लॉज, मतलब जो भी लोकल लॉज आ रहे हैं ना, सब उस एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं. So GDPR is from the European region, as you mentioned. So does it apply only for the Europe region or other companies also? Yeah, very good Other region question. also? Yeah, it's a very good question. Like जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो पहला सवाल यही होता है, GDPR तो EU का लॉ है, हम तो EU में है भी नहीं, हम इंडिया की कंपनी है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे EU में. सो GDPR और बाकी सारे प्रिवेसी लॉज भी ये करती है कि उनका एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अप्रोच भी होता है. मतलब आप अगर EU में हो तब तो आप पे एप्लीकेबल होगा. अगर आप पर्सनल डेटा यूज़ कर रहे हो, स्टैब्लिश्ड एंटिटी हो, पर्सनल डेटा यूज़ कर रहे हो, GDPR एप्लीकेबल होगा. लेकिन अगर आप बाहर हो कहीं पे और आपने EU के लोगों को कोई सर्विसेज दी थ्रू लाइक सम ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेबसाइट के थ्रू, Okay. अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो कि EU वाले लोग भी अपना डेटा सबमिट करके कुछ सर्विसेज ले सकते हैं, कुछ पार्सल हो सकता है, कुरियर सर्विसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, गेमिंग वगैरह कुछ भी, तो भी वो एप्लीकेबल होगा जस्ट बिकॉज EU के लोगों का डेटा आप ले रहे हो. सो इवन इफ यू आर सिटिंग इन इंडिया एंड टेकिंग डेटा ऑफ individuals who are residing in like EU, GDPR आप पे applicable होगा. Okay, when we say residing, so it's about just the
nationality being from the EU region, या कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, वो डायरेक्टली EU के रेसिडेंट्स को कैटर नहीं कर रही, बट let's say the EU people are traveling to India, and then they are using the services of this XYZ Indian company for some purpose. Would GDPR still be applicable? It's like typically applies when you are like catering individuals who are residing in EU, because that's an EU law, right? So if a particular individual is traveling to India, so GDPR typically doesn't apply in that case. It's more on the ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आप देखो, ऑर्गेनाइजेशन अगर टारगेट कर रही है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव छोड़ दो, ऑर्गेनाइजेशन अगर ईयू को देख रही है कि ईयू में बैठे लोग मेरा सर्विसेज इस्तेमाल कर ले, कुछ ऑफर्स दे रही है कि आप अगर आप स्पेनिश बोलते हो, अगर आप स्पेन में रहते हो तो आपको ये ऑफर्स है, दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग ईयू इंडिविजुअल्स, तो और उस ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा। इंडिविजुअल तो फिर वही है कि XYZ वैसे रेगुलेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग लाइक कि वो एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। या लाइक पीपल कैन डू दैट, मतलब इन्फोर्स करवा सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी। नाउ थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस आपने कई सारे अलग अलग लाइक प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से काम किया है, इट कुड बी द सोशल मीडिया, इट कुड बी अ फिनटेक कंपनी और सम अदर सेक्टर्स, तो हर सेक्टर में कुछ अलग लर्निंग मिली होगी, सो इफ यू कुड शेयर सम एग्जांपल्स लाइक। सो मैंने काम किया है ऑलमोस्ट लाइक सोशल मीडिया में, फिनटेक में और वीज़ा में। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद वीज़ा। ओके, सो सिंस वीज़ा सेक्टर इज़ लाइक समथिंग विच इज़ लाइक, वीज़ा में जो भी प्रोसेसिंग होती है ना गवर्नमेंट के बिहाफ में होती है, तो वीज़ा सेक्टर के लिए तो डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उन पे हैवी ऑब्लिगेशंस डालती है। राइट, डेटा प्रोटेक्शन के लिए उनको पहले मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपने डेटा प्रोटेक्शन नहीं किया, आपकी कंपनी में वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो मे बी वो क्वालिफाई ही ना करे उस बिजनेस के लिए। ओके, तो वीज़ा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, कंपनी सी इट एज लाइक कि हमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट मतलब गवर्नमेंट हमें कह रही है हमें प्रोजेक्ट चाहिए तो करना तो पड़ेगा। सो वहाँ पे ये ऐसा है कि हम कंप्लायंस ऑब्लिगेशन की तरह देखते हैं, ओके, और गवर्नमेंट जो है वो करवा देगी, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता देंगी कि आपको ये चीज़ें तो करनी है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक सोशल मीडिया में ये है कि वहाँ पे थोड़ा यूज़र राइट्स पे ज़्यादा फोकस होता है। जब हम वीज़ा प्रोसेसिंग में बात करें तो वहाँ पे प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें ना आपको गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट इज़ द मेन कंट्रोलर, मतलब वो हमें बताएगी, इंस्ट्रक्ट करेगी। सोशल मीडिया में इज़ लाइक कि यूज़र डायरेक्टली हम यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं, यूज़र्स का डेटा ले रहे हैं, एंड वंस लाइक एक बार हमने पोस्ट कर दिया, अगर वो पब्लिक प्रोफाइल है, कहाँ जाएगा वो, यू नेवर नो, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। सो सोशल मीडिया के लिए कि यूज़र राइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, प्रिवेसी बाय डिज़ाइन, प्रिवेसी बाय डिफ़ॉल्ट। नाउ व्हाट डज इट मीन, राइट? सो सोशल मीडिया में ना वो होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट, पहले नहीं था बट अभी बहुत सारी, लगभग सारी सोशल मीडिया ऐप्स ने ये कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी प्रिवेसी सेटिंग हाई रहेगी, मतलब आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो प्रोफाइल होगा ना वो प्राइवेट होगा। यू कैन मेक इट पब्लिक आपकी चॉइस से, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होना चाहिए कि प्रोफाइल जो है वो पब्लिक है एंड देन आप उसको टर्न ऑफ करके फिर वो प्राइवेट कर रहे हो। Yeah. So when you're creating a new account on social media, it's by default private only. It should be private. That's what privacy by default says. Okay. Then privacy by design भी मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था, तो उसमें है कि आप ना जो privacy है ना उसको आप एकदम ऑनसेट से रखो अपनी प्रोसेस में, चाहे वो प्रोसेस हो या कोई टूल हो या कोई ऐप हो, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो ना, प्रिवेसी को आप ना उसकी लाइक डिज़ाइन फेज में ही उसको इंटीग्रेट कर दो, एम्बेड कर दो। ऐसा नहीं कि बाद में हम जाके चेक करेंगे, दैट्स व्हाट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन डज कि अभी कर दो बाद में हम चेक करवा लेंगे। सो दैट शुड नॉट हैपन। प्रिवेसी बाय डिज़ाइन कहता है कि आप पहले ही अपने टूल को ट्रेन कर दो कि आपको मिनिमम डेटा ही लेना है, ये नहीं कि ढेर सारा डेटा ले रहे हैं अननेसेसरी, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सबको एक्सेस दे दिया और फिर कोई आके उसको फिर एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिवेसी डेटा प्रोटेक्शन सेटिंग्स होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, और प्रिवेसी लाइक डिज़ाइन फेज से होना चाहिए, इनिशियली होना चाहिए। That's what privacy by design says. Now, since you talked about this different sectors and all, okay, so every sector has a different set of data and different set of users actually. तो data के हिसाब से data risk तो आएंगे, that is for sure. But when we talk about the end users, those end users, do they actually understand like the data privacy in the same way? Sector wise you are talking about, whether they understand कि sector wise or any ways like. So it depends on like the goal of the company should be कि हमारे users को पता हो कि हम उनका डेटा क्यों ले रहे हैं, कैसे इस्तेमाल होगा।
सो इसको इजी करने के लिए होता है प्रिवेसी पॉलिसी, बट कंपनीज क्या करती है ना, जस्ट टू कंप्लाई विद दैट लीगल प्रोविजन एंड ऑब्लिगेशन, बस लिख देते हैं, लीगल जार्गन्स में लिख देते हैं, आम आदमी को पता ही नहीं क्या है एग्जैक्ट एंड या तो बहुत टेक्निकल लाइक बहुत ही लीगल वर्ड्स यूज करेंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं ना पढ़ूंगी ना समझूंगी, मैं आई एग्री करके भाई आगे बढ़ो, क्या ही है, क्या करना है एग्जैक्टली। हाँ, तो GDPR यही कहता है कि इट शुड बी इन ईजी एंड प्लेन लैंग्वेज। आप समझाओ, आप अपने एप्लीकेंट्स को समझाओ, और डेटा लेने से पहले समझाओ, पहले समझाओ कि क्या है प्रिवेसी नोटिस। आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं ना, एक नीचे वो पॉपअप बैनर आता है, आई प्लीज रीड आवर प्रिवेसी नोटिस, आई अग्री to the processing of my personal data, to know more please read our privacy notice। अब लोग आई अग्री करते, privacy notice तो इग्नोर हो गया वहाँ पे। बट द बेस्ट प्रैक्टिस शुड बी कि privacy notice को आप समराइज कर दो वहाँ पे। अगर चाहिए, मुझे जानना है कि और अच्छे से मुझे जानना है, अच्छा मेरा डेटा और कहाँ जा रहा है, तो उसको एक्सपैंड करवाओ। दैट शुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस, लेयर्ड privacy notice हम कहते हैं उसको। तो डेटा देने से पहले मुझे पता होना चाहिए मेरा डेटा कहाँ जा रहा है। ये नहीं कि मुझे बाद में, मैं चेक कर रही हूँ, बाद में मुझे पता चल रहा है कि मेरा डेटा तो किसी पार्टनर को भेज दिया, इंश्योरेंस वाले को भेज दिया, मुझे पता ही नहीं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं अननेसेसरी। एग्जैक्टली। तो वही है कि कंपनीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशंस है कि आप इंडिविजुअल्स को डेटा लेने से पहले समझाओ, बताओ बहुत ईजी लैंग्वेज में, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और इस पर भी फाइन्स लगे हैं कि आपका प्रिवेसी नोटिस तो क्लियर ही नहीं है कि आप डेटा ले क्यों रहे हो, you are not transparent, you are not fair to your like applicants or individuals, जो भी आपके customers, you are not fair। तो इस पे भी fines लगे हैं। So when you talk about fines, okay, again taking reference of GDPR at this moment, fines किस level तक होते हैं? so GDPR में तो फाइन का आप बोलोगे तो कोई अपर लिमिट ही नहीं है। Okay. So it's 20 million euro for high level of like दो कैटेगरीज में बांट दिया कि इन कैटेगरीज का अगर आप वायलेशन कर रहे हो तो अप टू 20 मिलियन यूरो और 4% ऑफ द एनुअल टर्नओवर। अब आप सोचो किसी कंपनी का 4% ऑफ एनुअल टर्नओवर तो कितना भी हो सकता है, इट कुड एक्सीड 20 मिलियन यूरो। और मैंने देखा है फाइन्स मतलब 3 डिजिट 5 डिजिट मिलियंस में लग रहे हैं, देयर इज नो अपर लिमिट। एंड इसमें है कि जो भी हाईएस्ट होगा वो लग सकता है। तो आप सोच लो कि कंपनी जितनी बड़ी उतना बड़ा फाइन। हाँ, फाइन का कोई लिमिट नहीं है इसमें, देयर इज नो अपर लिमिट। So 20 million is the minimum you are saying? It says 20 million euro up to 20 million euro और 4% of the annual turnover, वो भी globally। Okay. और whichever is higher। हाँ, that's what I'm saying कि और कोई कैटेगरी है जिसमें 20 मिलियन से कम भी हो सकता है? हाँ, 10 मिलियन अप टू 10 मिलियन, जैसे उसमें कैटेगरीज डिवाइडेड है। Okay. है ना। तो अगर आपने समझो, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग दैट क्लॉजेज, कुछ चीज़ों को ना बहुत वो माना गया कि चलो ठीक है ये थोड़ा लेस सीवियर इन्फ्रिंजमेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप वो उन पॉइंट्स पे अगर आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, वायोलेशन कर रहे हो, नॉन कंप्लायंस है आपका, तो वो उसमें है अप टू 10 मिलियन यूरो और 2% ऑफ द एनुअल टर्नओवर, व्हिचएवर इज हायर। नाउ ये तो हो गया GDPR। अब अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो नाउ वी हैव द DPDP एक्ट ओके इन प्लेस। इट वाज इन ड्राफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट फाइनली वी हैव इट रिलीज्ड। सो how is DPDP different from GDPR? Yeah, so firstly like I would like explain that like DPDPA was into place like it came into like it was enacted in 2023 right. And since then we are waiting when the rules will be coming and कब notify होगा, कब आएंगे, कब ये इंडियन जो कंपनीज है वो सीधे रास्ते पर आएंगी right. So finally मतलब रूल्स आ गया है and we have that timeline। okay. May 2027 final deadline है to comply with all the all the if you break it in phases, so how is it? So first है उसमें कुछ चीज़ें अगर हम कहें कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तो लाइक इमीडिएटली वो फोर्स में आ गया है। अब उसका फॉर्मेशन होगा, ऑफिस बनेगी। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज द अथॉरिटी हु विल ओवरसी कि ऑर्गेनाइजेशंस DPDP से कंप्लाई कर रही है कि नहीं। सेकेंड फेजेस में से एक है कंसेंट मैनेजर का। अब यहाँ पे कंसेंट मैनेजर GDPR में कॉन्सेप्ट नहीं है कंसेंट मैनेजर का। देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म। कंसेंट मैनेजर जो है ना वो इंडिविजुअल्स के बिहाफ में होगा और कंपनी कंसेंट मैनेजर के थ्रू कंसेंट लेगी और इंडिविजुअल जो है कंसेंट मैनेजर के थ्रू जाके चेक कर सकती है कि मैंने कहाँ पे अपना डेटा दिया है, मेरा कंसेंट मैंने कब दिया था, उसको रिवोक कब किया, ये सब वो कम्प्लीटली मैनेज कर सकती है कंसेंट मैनेजर के थ्रू। दैट इज द यूनिक थिंग इन DPDP। ये आई थिंक
is not No, in any other law, I yeah, guess. no, it's not in even in GDPR. Right. So GDPR में तो हम इंटरनली ही मैनेज करते हैं. Correct. There should be granular, everything is there, but कंसेंट मैनेजर यहाँ पे एक अलग एंटिटी ही बता दिया गया है. Okay. और वो मतलब अलग ही एंटिटी है ना, वो कंपनी का पार्ट है ना वो इंडिविजुअल का पार्ट है. Okay. तो वो सिर्फ कंसेंट मैनेज करेगी. Okay. सो इट्स अ यूनिक थिंग. वन मोर थिंग विच आई फाइंड लाइक GDPR में है इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफ़र को लेकर कि आप उन्होंने आपको ना एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज दे दी कि आपने अगर इन कंट्रीज में डेटा ट्रांसफ़र किया है, डेटा ट्रांसफ़र किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है, तो ये एडिक्वेट जुरिस्डिक्शन है, आप कर सकते हो. बट DPDPA में उन्होंने कहा है कि अनलेस लाइक गवर्नमेंट नोटिफाइज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज, मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है. Okay. तो इट्स मोर लाइक कि ब्लैक लिस्टिंग करेंगे वो कि इन कंट्रीज में नहीं करना है. बट टिल दैट टाइम इट्स वेरी वेग कि कौन सी कंट्रीज में नहीं करना है. जब तक वो तब तक तो कहीं भी कर सकते हैं. हाँ, तब तक तो यही भी करेंगे ये. Okay. So GDPR में उल्टा चल रहा है. वाइट लिस्टिंग चल रही है वहाँ White पे listing कि चल इन जगह पे कर दो, बाकी जगह पे अगर आपको करना है Then you have to go for individual consent and all. कंसेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल सेफगार्ड्स है, SCC साइन करवाओ दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में. Okay. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से बात करूँ, सो वंस DPDPA हैज़ बीन इन प्लेस नाउ, उनका भी कोई टाइमलाइन होगा कि हाँ इतने टाइम पे कुछ काम करना है फिर उसके बाद कुछ काम करना है? हाँ वही, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं. आपने पूछा कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी क्या फेज्ड मैनर में है, तो इट्स सेम जो मैंने तभी डिफाइन किया कि बोर्ड तो है इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाएगी, उसको इफेक्ट में आना भी बहुत, उनको इफेक्ट में आना भी बहुत ज़रूरी, तभी कंपनी स्टार्ट करेगी. Right. उसके बाद है कि नवंबर 2026 तक में आपको कंसेंट मैनेजर्स अपने जो है ना वो आप रजिस्टर करवा लो बोर्ड के साथ. बोर्ड अप्रूव करेगी कि आप हो भी कि नहीं एलिजिबल. Okay. उसमें भी उनके भी बहुत सारे क्राइटेरियाज रखे हुए हैं. हर कोई कंसेंट मैनेजर नहीं बन सकता, एक मिनिमम टर्नओवर का भी रखा है उसमें. Okay. एंड देन फिर मई 2027 तक बाकी जो भी आपके लाइक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स, इंडिविजुअल्स अपनी लाइक पूछ सकते हैं कि आप उनका डेटा कहाँ है, वो बोल सकते हैं कि मेरा डेटा करेक्ट कर दो, डिलीट कर दो. तो ये सारे राइट्स हैं कुछ DPDPA में. तो आपको एकदम फुल फ्लेज इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. इसको हम ग्रीवेंस रिड्रेसल भी बोलते हैं. उसके अलावा जो भी जितने भी डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स हैं इंक्लूडिंग इंक्रिप्शन एंड ऑल, सारे टेक्निकल सिक्योरिटी मेजर्स डालो, नोटिस सब कुछ इन प्लेस होना चाहिए बाई 2027. तो जितनी भी चीज़ें हैं DPDPA में, लाइक अपने वेंडर्स के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स लाओ, जनरली होता नहीं है. उन्होंने एक ऑफर दिया, एक डॉक्यूमेंट बना के दिया, हमने साइन कर दिया, प्राइसिंग होती है बस उस पर. मेन तो प्राइसिंग पे खेलते हैं. में बस वही प्राइसिंग होती है. उसके बाद ना कोई टर्म्स एंड एक स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन हो गया. राइट. हम उस पर नेगोशिएट भी नहीं करते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे क्यों हैं. तो या 2027 तक का टाइम है. DPDPA में भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा तब तक हर एक चीज़. वन मोर क्वेश्चन, लाइक व्हेन वी कंपेयर GDPR एंड DPDPA, मेजर डिफरेंस तो आपने बता दिया, बट let's say an organization is already like complying to GDPR, okay, because of the business nature and all. अब उसको DPDPA भी comply करना है, तो कितना उसको शिफ्ट करना पड़ेगा अपना टेक्नोलॉजी या बाकी प्रोसेस, या ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है जिससे वो इजीली कंप्लाई कर जाएंगे? या सो जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम कहें, टेक्नोलॉजी को थोड़ा और मतलब कि प्रिसाइज हो जाता है. टेक्निकल सिक्योरिटी मेजर्स जिसकी हम बात करते हैं, ये ऑल ओवर द ग्लोब सेम ही होता है. एनक्रिप्शन, एंड टू एंड एनक्रिप्शन एट रेस्ट एंड स्टोरेज, आप तो और बेहतर तरीके से जानेंगे इसको. तो ग्लोबली इसका स्टैंडर्ड सेम होता है, राइट. RBAC, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड ऑल. जब हम कहें कि राइट्स में यहाँ पे GDPR में है कि कंसेंट मतलब इंटरनली ही मैनेज होता था. यहाँ पे कंसेंट मैनेजर का एक कॉन्सेप्ट है. उसके अलावा राइट्स के टर्म्स पे जब हम बात करें तो GDPR में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव राइट्स दिया है ना. 8 राइट्स हैं उनके पास अलग अलग. DPDPA में मेजरली 4 राइट्स ही है. okay. और हेविली वो रिलाई करता है कंसेंट पे. okay. GDPR में है कि कंसेंट के अलावा भी और 5 ग्राउंड दिए हैं. दो मतलब DPDPA में भी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन 5 ग्राउंड्स को कवर कर लिया है और उसको 8 ग्राउंड बना दिया है. टू प्रोवाइड लाइक गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह दे रही है, गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे रही है, तो उसमें लाइक डिजास्टर वाला अगर कोई सिचुएशन आ गया, कोविड लाइक सिचुएशन अगर होता है, तो इस तरीके के सिचुएशंस में मतलब है कि ऑब्वियसली आप कंसेंट नहीं ले सकते, राइट. लीगल ऑब्लिगेशन अगर है तो वो कवर कर लिया है, इसलिए मैंने उसको डिफरेंस में नहीं बताया. बट दिस इज व्हाट लाइक नेम जो है ना, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, बट मेजरली कवर्ड है सारे ग्राउंड्स. कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन होता है लाइक कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अब स्टार्ट करे कि मुझे अब DPDPA कंप्लाई करना है, तो
कितना टाइम लग जाएगा उसको प्रॉपरली कंप्लाई करने? मेजरली डिपेंड्स कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बड़ी उसकी प्रोसेसिंग है, कितना बिजनेस वो कर रहे हैं. ओके. सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलियंस लाइक सिर्फ एक बिजनेस में अगर है, सपोज अगर हम कहे वीज़ा की बात करें, तो अगर वो सिर्फ एप्लीकेशंस ले रही है और कुछ नहीं कर रही, ओके. वो एआई में नहीं है, एआई यूज़ नहीं कर रही है, वो वेंडर्स यूज़ नहीं कर रही है. ओके. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि उनकी एम्प्लॉयज़ कितने हैं, राइट, एंड देन कितनी कंट्रीज में उनका प्रेजेंस है. ओके. सो डीपीडीपी, चूँकि अगर आप जीडीपीआर कंप्लायंट हो तो डीपीडीपी लाइक जस्ट एक दो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी उसमें, या तीन चार चीज़ें मान लो और ऐड हो जाएंगी. सो इट हेविली डिपेंड्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी प्रोसेसिंग में है. सिर्फ इंडिया में है, आपने कुछ नहीं कर रखा, तो आपको मतलब अभी से शुरू कर देना चाहिए. Okay. और विथ गुड वर्क फोर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान लगा दिया और वो करवाए जा रहे हैं. दैट वुड नॉट बी देन पॉसिबल. It's a long way to go. या Now, another key term that is trending apart from DPDP now is the AI. AI अब हर सेक्टर में है, बिल्कुल. हर जगह उसका इन्फ्लुएंस है. तो ऑब्वियसली डेटा प्रिवेसी में भी AI का इन्फ्लुएंस तो आया ही होगा. एंड मेजरली अगर मैं बात करूँ विथ ऑल दी AI एजेंट्स integrated into the website and applications. For example, अगर मुझे किसी फ्लाइट बुक करनी है तो पहले मैं मैनुअली सब कुछ करता था. अब मैं बॉट में जाऊँगा, 4 इंस्ट्रक्शन दूंगा एंड द बॉट विल बुक द फ्लाइट फॉर मी. सो उसकी वजह से डेटा प्राइवेसी कितना इम्पैक्ट हुआ है एंड हाउ डेटा प्राइवेसी इज एक्चुअली रेगुलेटिंग दैट काइंड ऑफ एजेंट. सो पहले अगर हम बात करें कि हाँ ये एआई ट्रेंडिंग तो बहुत है, लाइक हर कंपनी को अब ये आ गया कि हम इनोवेशन में जाएंगे, हम हर चीज़ में एआई लेकर आएंगे. करेक्ट. कस्टमर हैंडलिंग तो मेजरली एआई कर रहा है. हाँ. या फिर आप बोलो कि हायरिंग हो, तो हर चीज़ में वो जहाँ जहाँ ला सकते हैं हर चीज़ में एआई लाएंगे, क्योंकि अब उनको इंसान से ज़्यादा एआई पे भरोसा है. करेक्ट. टू सम एक्सटेंट इट्स गुड, एफिशिएंसी बढ़ती है उससे. बट अगर हम बात करें कि प्रिवेसी कितना आ रहा है उसमें, तो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोसेसिंग एआई जो है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है. एआई में अगर आप डेटा इनपुट कर रहे हो, पर्सनल डेटा डाल रहे हो, दैट शुड बी गवर्न्ड बाय डीपीडीपी. अगर वो इंडियन एंटिटी है और इंडियंस का डेटा अगर ले रही है, तो डीपीडीपी उसमें भी आएगा. अब बात आती है कि कैसे उसको हम रेगुलेट करेंगे. तो एआई जो है ना वो लाइक एक ऑटोनोमस कोई एंटिटी तो है नहीं, उसके पीछे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. वो खुद में तो ऑपरेट कर नहीं रही है. देयर मस्ट बी सम डेवलपर जो उसको सिखा रहा है, मशीन लर्निंग हो रही है, इनपुट दे रहा है, आउटपुट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको पूरा सिखा रहा है, राइट. कि उसके गोल्स क्या होने चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कहाँ पे यूज़ करना है. तो देयर इज डेवलपमेंट पार्ट एंड देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो उसको यूज़ करेगी. तो डेवलपमेंट तो हो गया. अब जो ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करने के बारे में सोच रही है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर जा रही है. तो सपोज आपने एक एआई बना दिया कि अब हम इसको यूज़ करेंगे हायरिंग में. अब मैं एज एन एंटिटी अगर मैं सोचूं कि अब इस एआई को तो मैं यूज़ करूँगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशंस आएंगी कि आपने चेक किया क्या एआई प्रिवेसी रिस्पेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल्स की, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा तो नहीं ले रहा है, क्या ये कंसेंट ट्रैक कर पा रहा है, क्या आप अपने एआई को मेरे जो एप्लीकेंट्स होंगे, मेरे जो इंडिविजुअल्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनका डेटा लेकर उसको ट्रेन तो नहीं करोगे. आपके एआई में जो डेटा जा रहा है वो कितना सिक्योर है, कितना प्रोटेक्टेड है. तो हर तरीके से एआई इज़ नॉट लाइक एग्जेम्प्टेड. और टू ऐड ईयू इन सब में काफ़ी आगे है. ईयू में ऑलरेडी एआई एक्ट आ चुका है जो स्पेसिफिकली एआई को भी गवर्न करती है. उसमें रिस्क लाइक डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस सब कुछ आता है. उसमें रिस्क बेस्ड असेसमेंट्स भी होते हैं. आपका एआई जो है ना वो उन रिस्क पैरामीटर्स को क्रॉस लाइक पास करना चाहिए, तभी आप ईयू में यूज़ कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज़ एनी XYZ AI इन दैट रीजन. सो इट इज़ लाइक एंटिसिपेटेड कि आएगा, यहाँ पे भी इंडिया में भी आएगा एआई को गवर्न करने वाला है स्पेसिफिकली. बट टिल दैट टाइम डीपीडीपी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एआई. एंड इन टर्म्स ऑफ एआई देयर इज अनदर न्यू टर्म दैट हैज emerged, that is shadow AI. Yeah. What is that? So अभी मैंने बताया कि हम एआई यूज़ कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लाइक अप्रूव कर रही है. अप्रूवल के लिए भी डीपीओ डेटा प्राइवेसी टीम है उनकी, उनसे अप्रूवल होता है. वो पूरी चीज़ें असेस करती है कि ये एआई कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, इन टर्म्स ऑफ कितना मतलब कि ये प्राइवेसी को रेस्पेक्ट कर सकती है, कंप्लायंट है नहीं है लॉ से. तो ये अप्रूव्ड एक आपका चैनल के थ्रू एक एआई यूज़ हो रहा है. वो तो चलो ठीक है, मेरे नॉलेज में है, बाद में भी मैं जाके चेक करूँगी, ठीक है. उसके बाद आता है ना कि जो एम्प्लॉयज़ ना खुद से ही छुपा के कि यार एआई है मार्केट में, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो यूज़ करूँगा, मैं तो अपने हर छोटे काम के लिए इसको यूज़ करूँगा, इतना कौन डॉक्यूमेंट पढ़े. सो आई हैव सीन पीपल, मतलब इनिशियली या फिर अभी भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में, अरे मैं तो अपने हर काम के लिए एआई इस्तेमाल करता हूँ. ChatGPT है, परप्लेक्सिटी है,
परप्लेक्सिटी प्रो भी है, Right. उस पे तो मैं, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के उसका अगर क्लॉज निकालना है तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट डाल दूंगा उसमें। इतना कौन पढ़े, आप भी तो समझो, इतना कौन पढ़े, मतलब 73 पेजेस है, 1 घंटे में कैसे होता, Right. इसने 5 मिनट में कर दिया। तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, Right. मतलब अनअप्रूव्ड एआई जो वो यूज कर रहे हैं, एंड उनको पता भी नहीं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। Right. फॉर देम दे आर जस्ट बीइंग एफिशिएंट, प्रोडक्टिव, है ना, दे आर बीइंग स्मार्ट, कम समय में काम कर रहे हैं। Correct. बट आप उस एआई के थ्रू अपना जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आप नोइंगली अननोइंगली उसको भेज रहे हो, यू आर नॉट पूरा इवन कॉन्ट्रैक्ट ही भेज रहे हो आप तो। पूरा कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हो सकता है कि आपको चाहिए होगा कि अरे मुझे हायरिंग करनी है, ये इस बंदे का प्रोफाइल है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, बताओ है सूटेबल। अब आपने ऐसे इनपुट कर दिया डेटा, आपने एक कैंडिडेट का डेटा उसको डाल दिया, कंप्लीट। एक रेज्यूमे में कितना कुछ होता है, करेक्ट। उसकी सारी डिटेल्स होती है। सो दैट्स व्हाट लाइक एम्प्लॉयज़ आर डूइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनमें अवेयरनेस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में भी अवेयरनेस नहीं है कि एआई इज़ लाइक रियली यूजफुल, बट उस एआई को भी आप एक अप्रूव चैनल के थ्रू लाओ, ओके। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो कि आपको किस हद तक डेटा उसमें इनपुट करना है। यू कैन नॉट अपलोड द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल। यू कैन नॉट अपलोड द लाइक डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स। आप उसको जेनरिक सिनेरियो में यूज़ करो कि ये सिनेरियो है, बिना कोई पर्सनल डेटा के ये सिनेरियो है, मुझे इसको सजेस्ट करो, दैट इज़ फाइन। बट आप पर्सनल डेटा मत यूज़ करो। तो देयर शुड बी एआई गवर्नेंस पॉलिसी in place. I mean, countries are coming up with the AI governance things. India में भी एक kind of framework कुछ आया है, but not like completely regulated. But yes, there is something around it. Yeah. It will get more refined. Yeah. Maybe after the DPA gets Yeah. into picture perfectly. See, that is how the technology advances and the new trends come in. जब तक सिर्फ टेक की बात हो रही थी तब तक हमारे पास एक टर्म था shadow IT. And now because we're talking about AI, we have a new term that is shadow AI. Shadow AI. Yeah. For the common listeners जिनको शायद नहीं समझ में आया पूरा चीज़, shadow IT is like कि कंपनी में एक IT का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है या IT का कोई भी एक एसेट यूज़ हो रहा है जिसके बारे में IT टीम को शायद पता ही नहीं है, कि इट्स नॉट इन देयर एसेट लिस्ट। 5 सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं जिसमें 3 की एंट्री तो लिस्ट में है, बाकी 2 सर्वर्स ऐसे हैं जो क्लाउड पे है लेकिन IT टीम को उसके बारे में पता नहीं है और उस पर सारा बिजनेस चल रहा है। कल को अगर वो एक एम्प्लॉय जिसने वो सर्वर सेटअप किया था ऑनलाइन, वो कंपनी छोड़ कर चला जाए तो किसी को नहीं पता कि वो सर्वर कहाँ है। दैट इज़ अ शैडो IT टर्म। सिमिलरली AI के केस में नाउ पीपल आर यूजिंग दोस अनअप्रूव्ड AI टूल्स फॉर डूइंग ऑल द बिजनेस थिंग्स एंड ऑल, जिसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा भी जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी जा रहा है, एंड द IT टीम और द एक्चुअल सिक्योरिटी टीम एंड ऑल, दे डोंट नो अबाउट इट। तो उनको पता ही नहीं कि मुझे किस AI टूल को रेगुलेट करना है, किस AI टूल को सिक्योर करना है before the data gets uploaded, and again leading to bigger risk in the market. So these are the two terms, shadow IT and shadow AI. Organization needs to develop an awareness. उनको अपने employees को बताना जरूरी है कि why it is important to get things approved. Okay. Yeah. It is easy actually कि ठीक है ना, कौन जाएगा approval process से, that is what the general perception happens in the organization. अप्रूवल के लिए जाऊँगा, मैं आज मेल डालूँगा, फिर वो किसी एक लेवल पे अप्रूवल होगा, फिर 2 लेवल पे उसका असेसमेंट होगा, इट विल टेक अ वीक टाइम मे बी, एंड देन फाइनली आई विल बी एबल टू यूज अ सॉफ्टवेयर। सेकेंड ऑप्शन है बिना किसी को बताए कर लो, इंटरनेट पे गए, अपना टूल एक्सेस किया एंड थिंग्स गेट वर्क। तो दे डोंट अंडरस्टैंड द बैक एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एंड दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग इट, बट इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन हाउ दे spread the awareness. Now there are few key terms in terms of the privacy operations and all. Okay, अगर operational level पे बात करूँ, so there are few terms that talked about frequently. If you can just give us a walk through those terms, like DPIA क्या होता है, and then there's a TPRA, then there's a term called as DPA. Yeah. Okay, so what exactly are these terms? ओके, सो अगर हम बात करें GDPR की इम्प्लीमेंटेशन की या फिर किसी भी प्रिवेसी फ्रेमवर्क को ले लेते हैं, GDPR में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लाइक उसकी गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आता है, DPIA, TPRA। सो दीज आर बेसिकली असेसमेंट्स। अब पहले बात करते हैं हम कि DPIA कब आता है, कब हम डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। सो DPIA पिक्चर में वो तब ट्रिगर होगा जब आप किसी न्यू टूल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, मतलब प्रपोज कर रहे हो, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप डेटा डालोगे, इवन इट कुड बी अ न्यू प्रोसेस एज वेल, है ना, कि हम ये करने वाले हैं, इस तरीके से करेंगे, इसमें डेटा जाएगा। तो अगर इसमें डेटा है, एक टूल है, नया टूल, नया प्रोसेस है, तो उस टाइम पे DPIA ट्रिगर होता है अगर आपको लग रहा है कि जो जिस टाइप का आप डेटा डाल रहे हो ना उसमें, और जिस टाइप का आउटकम आप उससे मांग रहे हो,
उसकी वजह से किसी को हार्म हो सकता है, किसी को रिस्क हो सकता है, ठीक है, in terms of data privacy. या इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रिवेसी. Okay. सो व्हेनेवर यू इनपुट सम एनी पर्सनल डेटा, एक प्रिवेसी का रिस्क तो आता है. अब इट डिपेंड्स कि आप कितना डाल रहे हो. अगर आप बहुत सेंसिटिव डेटा इनपुट कर रहे हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, किसी की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग डाल रहे हो, किसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो इससे इम्पर्सोनेशन वगैरह, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क आ जाती है. बायोमेट्रिक्स अगर ले रहे हो, दैट इज वेरी रिस्की, है ना. बायोमेट्रिक्स तो मतलब सब कुछ ही है, सब कुछ है उसमें. कंप्लीट यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है वो. सो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का डेटा आप उसमें इनपुट कर रहे हो, एंड उससे आप सीख क्या कर रहे हो उस प्रोसेस से, उस टेक्नोलॉजी से. सो डीपीआई ये तब होता है, इसमें हम ये असेस करते हैं कि क्या हम जितना डेटा डाल रहे हैं इस टूल में उतना ज़रूरी भी है, और इतना डेटा डालने के बाद हम उससे क्या इनपुट, क्या लाइक आउटपुट क्या हमें चाहिए उनसे. क्या कोई और लेस इंट्रूसिव मेजर हो सकता था, मतलब कि कम, बिना प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करते हुए लेस इंट्रूसिव मेथड्स, मतलब कम डेटा डाल के भी आप, या फिर दूसरी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप उस सेम पर्पस को अचीव कर सकते थे क्या. सो दैट्स व्हाट डीपीआई इज. ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना कि कोई एक किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कोई एक बंदा एक टूल लाइक सजेस्ट करता है, राइट. जैसे अगर हम कहें कि हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, केवाईसी ही करना है, तो अब केवाईसी करना है, लाइक जनरली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होता है कि लाइव हमें चाहिए, हमें पता होना चाहिए नो योर कस्टमर हु इज सिटिंग, लाइक कौन है उसमें. तो उनके लिए ये नेसेसिटी है, बट क्या जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो प्रोपोर्शनल भी है इतना. ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही ले रहा हो, कुछ ज़्यादा ही ले रहा हो, बहुत दिन तक डेटा स्टोर करके रखा हुआ, रॉ टेम्पलेट्स रख रहा है बायोमेट्रिक्स के, दैट इज़ नॉट लाइक प्रोपोर्शनेट. तो यही सब हम असेस करते हैं कि जो आप सोच रहे हो, जो आप ऑब्जेक्ट है आपका, क्या आप वो अचीव कर पा रहे हो, या फिर कोई दूसरा मेथड भी है, ऑल्टरनेटिव है, क्या आपने उसको एक्सप्लोर किया या नहीं. ओके. नेक्स्ट इज टीपीआरए. सो टीपीआरए तो अगर आपकी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर लाइक सर्विस के लिए अगर आउटसोर्स कर रही है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि क्या हमने थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट करी है या नहीं. ओके. और थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिवेसी तब आएगा जब आप उस वेंडर को, जिसको भी आप आउटसोर्स करने का सोच रहे हो, उनके साथ सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल डेटा शेयरिंग हो रही है. कुछ भी हो सकता है, नेम ईमेल भी हो सकता है, सिंपल. तो जब भी ऐसा कुछ शेयरिंग हो तो ये टीपीआरए तब ट्रिगर होता है. ओके. तो मेजरली मैं अपने फंक्शन की अगर बात करूँ तो मैं सिर्फ प्रिवेसी रिस्क जो है, उनका प्रिवेसी कंप्लायंस पोस्चर असेस करती हूँ. हाउ कंप्लायंट दे आर, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, क्या उनका जो प्रोसेस है वो इतना लाइक डेवलप्ड है कि जब मतलब डेटा एक टाइम के बाद डिलीट कर दे. ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम दिखा रहे हैं डिलीट हो गया, बट हम दूसरे सर्वर पे, दूसरे जगह पे सेव करके रखे, कॉपी बनी हुई है. क्या आपका मतलब प्रोसेस इतना अच्छा है कि आप इतना डेवलप्ड है, क्या आप इतने अवेयर हो कि आपको ये जो डेटा हम दे रहे हैं ना वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना. वेंडर्स क्या सोचते हैं, हमें यहाँ से डेटा आ गया, हमारे पास तो डेटा, अब इसको मार्केटिंग के लिए हम अपने लिए यूज़ करेंगे. सो ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं. इन केस कभी होता है कि हमने आपको आउटसोर्स किया सपोज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, लेट्स से अगर हम बात करें तो कुरियर पार्टनर. अब कुरियर में कुछ एक डेटा भेजा हो आपने, या फिर कुछ सामान ही भेजा हो, उसमें कुछ डिटेल्स तो जाती है जो उसको रिसीव करेगा और जो सेंडर होता है. अब अगर कुरियर लॉस्ट हो गया बीच में, तो एप्लीकेंट हो या फिर इंडिविजुअल हो, वो तो मुझे रीच आउट करेगा, राइट, कि मेरा पार्सल कहाँ गया. अब मेरे पास, मेरा वेंडर इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके पास कि, और इतना प्रोसेस डेवलप्ड होना चाहिए कि कल को अगर कोई इंडिविजुअल मेरे पास आता है और कोई डेटा मांगता है उससे रिलेटेड, तो वो उस पोजीशन में हो कि मुझे वो सपोर्ट कर सके, असिस्ट कर सके उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में कंप्लीटली. मतलब कहो तो कि डेटा प्रोटेक्शन जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना उनका भी है, वो भी उतनी, मतलब उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि डेटा प्रोटेक्टेड रहे और पूरी राइट्स को, जो भी उनके पास डेटा जा रहा है, उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करके रखें. ओके, सो दैट्स टीपीआरए. नेक्स्ट टर्म वाज डीपीए. सो डीपीए इज जनरली लाइक, अगर आप किसी भी वेंडर को आउटसोर्स कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, पर्सनल डेटा शेयरिंग है, तो एक डीपीए होता है, डेटा प्रोसेसिंग अग्रीमेंट का हो या डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम का हो. तो इसमें हम वही गवर्न करते हैं कि कैसे आपको भी उतना ही डेटा का ध्यान रखना है जितना हम ध्यान रखते हैं. कैसे आपको डेटा प्रोटेक्टेड रखना है थ्रू आउट, आपको कैसे डेटा दूसरे किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है. अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर होगी, क्योंकि मैं उसको आउटसोर्स कर रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि वो आना चाहिए, इस पर्पस के लिए डेटा यूज़ होगा. बट जो टर्म्स है लाइक
ऑब्लिगेशंस इक्विवेलेंट कर देते हैं मुझसे, ताकि वेंडर्स को सीरियसली वेंडर सीरियसली ले। कल को अगर कोई ब्रीच होता है, कोई नॉन कंप्लायंस मेरे पास होता है उनके लाइक एक्ट्स के वजह से, तो हम उससे लाइक रिकवर कर सके, रिकोर्स हो हमारे पास कि हमने तो वेंडर को बताया था, हमने इंस्ट्रक्ट किया था, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी, तो हमारे पास भी एक रिकोर्स हो। सो अगर कोई आज के डेट में एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हो, इट्स न्यू स्टार्टअप एंड ऑल, स्पेशली इन द एआई डोमेन, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम इन टर्म्स ऑफ डेटा प्राइवेसी? या सो अब एआई हो तो जैसे मैंने बताया कि हर कंट्री ऑलमोस्ट अब आने ही वाले, बस 4-5 साल में सारी कंट्रियों के पास अपना एक एआई एक्ट होगा। और उस एआई एक्ट में भी वही बात होगी, ट्रांसपेरेंसी। आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा कि आपका एआई किस तरीके से काम करता है, डेटा कहाँ शेयर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कितनी दिन तक स्टोर हो रहा है, कौन कौन सा डेटा आप ले रहे हो। सो ट्रांसपेरेंसी शुड बी वेरी लाइक इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपको, प्रोटेक्शन होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट होना चाहिए उस पर, डेटा प्रोटेक्शन बाय डिजाइन एंड डिफॉल्ट दोनों, कि बाय डिफॉल्ट आपका डेटा जो भी हम ले रहे हैं वो प्रोटेक्टेड ही हो। ये नहीं कि मुझे आपको बताना पड़ रहा है बाद में कि कुछ हो गया, अरे अब तो लाइक ब्रीच हो गया, अब हम जाके इनक्रिप्ट कर देते डेटा, अब करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, आफ्टर थॉट नहीं होना चाहिए। तो जब आप बना रहे हो एआई, उस टाइम पे ही ध्यान रखो कि आपका जो लाइक एआई है वो इतने अच्छे से ट्रेंड हो कि मिनिमम डेटा ले, डेटा को मिसयूज ना करे, लीकेज ना हो उसमें। और बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन वाला एक पॉइंट आता है जब भी हम एआई की बात करते हैं, तो वो उसमें उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो बायसनेस और डिस्क्रिमिनेट ना कर सके इंडिविजुअल्स के बीच में, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करे, कंसेंट्स रिकॉर्ड करना सीखे, समझे। सो दैट्स व्हाट कंप्लाई टू द एआई एक्ट। या एआई, एंड अगर एआई नहीं है तो डीपी है, बिकॉज डेटा आप उसमें इनपुट कर रहे हो। जनरली होता है कि एआई वाले जो लाइक डेवलपर्स होते हैं ना, वो प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देते। मेरे एक आया था मेरे एक बार काम में ऐसा एआई, सो वो प्रोटेक्शन में ना उनको पता है कि उनका एआई कैसे काम कर रहा है, या तो पता है वो बता नहीं पा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपका एआई कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी एंटिटी, थर्ड पार्टी एंटिटी इन्वॉल्व है, तो उनको तो उनका है कि बस एक डाल दिया, हमारा मेन आउटकम, मेन इनपुट ये होगा, मेन और आउटकम ये होगा आपका, बट बैक एंड में कैसी चीज़ें काम कर रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैं एक जनरल यूजर के हिसाब से बात करूँ, एवरीडे यूजर, सो व्हाट वुड बी द 3 टिप्स और थिंग्स दैट दे शुड डू टुडे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ऑनलाइन? या सो पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप कोई नया वेबसाइट खोलो या कोई ऐप इंस्टॉल करो, जस्ट गो थ्रू द लाइक प्राइवेसी पॉलिसी। पहला मेरा यही होगा, वहाँ से यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग कि आपका डेटा मतलब कैसे हैंडल होगा। अगर लाइक उसका है कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, लिख देती है कि वी विल यूज योर डेटा ओनली फॉर द पर्पसेस मेंशन्ड अबव, या फिर मेंशन्ड इन द पॉलिसी, और पॉलिसी में कहीं मेंशन्ड ही नहीं होता कि क्यों यूज कर रहे हैं। सो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऑब्वियसली लाइक हर कंपनी को अब ये ऑब्लिगेशन है इंडिया में भी कि एक कॉन्टैक्ट पर्सन रखो जिसको वो पूछ सके, अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यू हैव लाइक ऑल द राइट्स नाउ। तो मई 2027 तक में आपके राइट्स में इन्फोर्स होने लग जाएंगे, तो आप बोल सकते हो कि बताओ आपके किसी भी कंपनी को, इफ़ यू फील कि आपका डेटा उनके पास गया है या मिसयूज हुआ है या मिस हैंडल हो रहा है, और सिंपली जस्ट अब आपको चाहिए कि मेरा कंसेंट विड्रॉ कर दो आप, मतलब मुझे नहीं, अब आपने जो भी डेटा रखा है अब उसको आप प्रोसेस मत करो, डिलीट करो, करेक्ट करो, ये सारे राइट्स हैं। तो यू शुड बी अवेयर। जनरल पब्लिक और एक चीज़ क्या जो ओवरलुक करते हैं, वो जब भी कोई ऐप या कुछ इंस्टॉल करो या वेबसाइट भी ना, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है कई जगहों पे कुकीज़ को लेके, जनरली आपने देखा होगा अग्री और डिसअग्री होता है। अब वो समझ नहीं पाते, या तो उसको ऐसे कर देते हैं कि मतलब अगर आप, कुछ लोगों को तो बस ऑप्शन होता है कि कुकी बाय यूजिंग दिस साइट यू अग्री टू और लाइक यूज ऑफ कुकीज, और ओके कोई ऑप्शन ही नहीं है कि डिसअग्री और अग्री करने का कोई ऑप्शन ही नहीं, अग्री बाय डिफॉल्ट है। तो वो नहीं होना चाहिए। आप उस सेटिंग्स को जाके देखो, उसमें मैनेज प्रेफरेंस का भी ऑप्शन होता है, आप वहाँ से ऑप्ट आउट कर सकते हो कि कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी को, पार्टनर्स को आपका डेटा ना दिया जाए। देन और एक चीज़ होती है कि ऐप्स में ना कुछ बाय डिफॉल्ट परमिशन वो मांगते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं बट वो परमिशन मांगते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग लेंगे, कैमरा का एक्सेस मांग लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उनकी। तो उन परमिशन को जाके आप जाओ एक बार अपने ऐप से परमिशन पे, वहाँ पे जाके चेक करो आपने कौन से ऐप को क्या क्या परमिशन दिया। अगर आपने माइक परमिशन ऑन रखी है तो द ऐप इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू यू, यू मस्ट हैव लाइक ऑब्जर्व दिस थिंग।
अभी हम किसी चीज पे बात करेंगे, अगर मैं वॉच की बात करूँ, थोड़ी देर बाद आप इंस्टाग्राम खोलो, राइट उस पे वॉच का आ जाएगा. राइट दैट्स हाउ दे मैनिपुलेट आल्सो ना. राइट हमने ऐसे ही बात करी 1-2 मिनट के लिए, एंड आए, द अब नेक्स्ट वो वीडियो यू सी इज अबाउट इन्फ्लुएंस दैट. करते रहेगा वो. हाँ खरीदते रहो, फिर ऑफर्स दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे. correct. अपने बात करी कहीं जाने की, ट्रिप्स का वो दिखाने लग जाएंगे, प्लान की डिस्काउंट है वो. हाँ. तो माइक्स, कैमरा, जो भी परमिशन है उन सबको प्लीज ऑफ करो. उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं जनरली, अब तो तीनों ऑप्शंस आने लग गए हैं. Okay. Allow while using the site, allow only this time, or Don't never, allow. don't allow. Don't allow is best, but still you might need to For give the some- for permission, some है ना. reasons. अब अगर हम कहे कि इंस्टाग्राम पे कभी स्टोरी डालनी हो आपको, तो वो तो मांगेगा परमिशन, लेकिन उसमें आप कर दो अलाउ ओनली दिस टाइम, Correct. अभी के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम वो फिर से मांगेगा. I generally follow that practice only, whichever Yeah. application I use. Yeah, अगर allow वो only this permissions time. मांग रहा है तो I make sure कि वो हर बार मांगेगा मुझसे. या एग्जैक्टली. If I allow it one time और अगली बार के लिए वो by default हो गया, फिर मुझे पता ही नहीं वो क्या पता ही नहीं कब चलेगा मांग रहा है. एग्जैक्टली. और वो कांस्टेंट रहता है ना. अलाउ यूजिंग दिस साइट, व्हाइल यूजिंग दिस साइट इज आल्सो लाइक, आई डोंट फाइंड इट लाइक, हाँ, because we don't know ना कि उस साइट को कब ले रहा है मेरे दे डेटा. आर कॉन्स्टेंट व्हाइल यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम. लाइक आजकल तो बच्चे हो या फिर यंगस्टर्स हो, सब लोग ही इनफैक्ट Right. दिन में मुझे लगता है 4-5 घंटे वो इंस्टाग्राम को इजीली देते हैं. Right. उस 4-5 घंटे के लिए उस ऐप के पास आपका लाइक कैमरा परमिशन है, Mic का माइक permission परमिशन है, And sometimes location also. या लोकेशन एज वेल. लोकेशन हर वक्त तो लोकेशन की जरूरत भी नहीं जरूरत ही नहीं होती. है. बाय डिफॉल्ट लोकेशन तो व्हाई डू यू नीड लोकेशन. सो ये 3 टिप्स होंगे. रीड द प्रिवेसी पॉलिसी, ऑलवेज चूज योर लाइक, यू कैन चूज व्हाट डेटा यू वांट टू गिव, राइट. तो वो आप अपना प्रेफरेंस मैनेज कर सकते हो. और तीसरा ऐप परमिशन, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट एन एड ऑन फ्रॉम माई साइड. इसके अलावा अगर आप किसी एप्लीकेशन पे जाके या किसी वेबसाइट पे जाके नया अकाउंट बना रहे हो, साइन अप कर रहे हो, सो साइन अप के टाइम पे देर आर 2 ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिंग एन अकाउंट. एक है जिसमें आपको इंडिविजुअली सारी डिटेल्स भरनी होती है, लाइक योर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड ऑल. और सेकंड ऑप्शन होता है साइन अप विथ गूगल, साइन अप विथ फेसबुक, साइन अप विथ ट्विटर, already using the third party application. Prefer to use the first option, which is like you are signing up with your individual details instead of using that sign up with Google and all. Because just imagine कि अगर आप मान लो 10 वेबसाइट यूज कर रहे हो अलग अलग एक्टिविटी की, अलग अलग पर्पस के लिए, and on each of them you are using that same Gmail ID और Google account for doing the sign up. तो बैकएंड में क्या हुआ है कि गूगल के पास आपका एक पूरा लाइक फ्लो बन गया है, वर्क फ्लो बन गया है कि आपने 10 अलग अलग पर्पस की वेबसाइट्स को यूज़ किया, एंड देन इट बिकम्स ईजी फॉर गूगल टू ट्रैक इट कि आप कैसे किस तरीके से वो 10 वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हो या 10 एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हो. एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट डेटा, ऑब्वियसली कंपनी लाइक गूगल और फेसबुक, दे कैन क्रिएट अ प्रोफाइल ऑफ यू. ओके, अ कंप्लीट प्रोफाइल कि आप किस तरह के इंसान हो, आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ है, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो डे टू डे एंड सो ऑन. So try avoiding that option. Instead, go for an option wherein you are just using the sign up through individual details, ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर सके. I know easy option होता है sign up with Google and things become easy. एक click and things are done. But again, privacy comes at a cost. तो या तो आप अपनी privacy से compromise कर सकते हो या फिर अपनी convenience से. Before we actually wrap up for today, just few things like, so what is that latest trend that you're seeing in the data privacy domain? We have already talked about this AI thing. Like every company is like, each processing is like, now they are planning कि हर चीज AI से वो करे. Right. This would what trend in like 2026 more. Okay. मतलब और भी ज्यादा हो जाएगा. हर एक प्रोसेस में ही AI इंट्रोड्यूस हो जाएगा. हर एक चीज के लिए AI, ईमेल लिखने के लिए भी AI है. Okay. Companies don't understand. They start using that thing and they don't understand that AI is reading their like confidential emails and all. Correct. कई लोग तो ईमेल का पूरा कंटेंट उठा के कॉपी करके डालते हैं हाँ. कि इसका रिप्लाई ड्राफ्ट कर दो. बिल्कुल. नाम वाम सब रहता And है. I'll give you an example. Like one of my conversations, this we talked about. कुछ लोग तो क्या करते हैं कि मेरे पास लेट्स से मुझे किसी ईमेल ट्रेल में काफ़ी देर बाद लूप इन किया गया. True. तो नीचे हो सकता है 15-20 मेल्स का चेन है और मुझसे एक्सपेक्टेशन हो रही है कि आई शुड रिप्लाई टू दैट ईमेल दिन मे बी इन द नेक्स्ट 1 or 2 hours बेस्ड ऑन व्हाटएवर इनपुट आई रिसीव्ड. अब मेरे को पूरी मेल ट्रेल पढ़नी है, Exactly. समझना है कि सिनेरियो क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन रिप्लाई. तो या तो मैं बैठ के सारी मेल्स नहीं पढ़ूंगा. सेकंड ऑप्शन क्या है? अपलोड दैट ऑन टू ChatGPT or something summarize. and ask them to summarize that email for me. और वो And people are doing it.
या बट उसमें होता क्या है कि दे नेवर एक्चुअली स्क्रॉल टू चेक कि नीचे की मेल ट्रेल पे क्या था. कितना कॉन्फिडेंशियल था, सेंसिटिव था. एग्जैक्टली. सो पीपल नीड टू हैव दैट अवेयरनेस एंड Yeah. वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का रोल है एक्चुअली. आई मीन एज एन एम्प्लॉय मे बी द एम्प्लॉय मे नॉट अंडरस्टैंड इट, बट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उनको अपना प्रोसेस इतना मैच्योर करना पड़ेगा Yeah. कि लोगों में अवेयरनेस हो, स्पेशली देयर एम्प्लॉयज, सो दैट the employees are handling their data properly. Yeah. It's ultimately the organization's data, not the employee's data. Exactly. अगर कोई लिसनर डेटा प्रिवेसी में अपना करियर बनाना चाहता हो तो where should they start with? Is law mandatory for them? First thing. I would like to answer your questions first. Like law is not mandatory, but अगर आपने law किया है तो it will add like it will have some sort of privilege. It will give you an edge क्योंकि ultimately जो data privacy का domain आ रहा है ना वो law से ही govern हो रहा है, right? Okay. तो GDPR है, DPDP है, you should know how to interpret the laws, the provisions of the law. Okay. So it will give you an edge, but generally it's not a mandatory thing. Like data privacy is जैसे हमने बताया कि law, tech और business का भी है. तो इसमें मेजरली या तो लोग टेक से होते हैं या तो लॉ से होते हैं. और अब तो है कि लॉ के अलग लाइक डेटा प्रोटेक्शन के अलग कोर्सेज भी आ रही है. तो अगर आप कोई बैकग्राउंड से भी नहीं हो और अपने डेटा प्रोटेक्शन से शुरू ही किया अपना करियर, अभी बहुत से पास आउट्स होने वाले होंगे, 3rd 4th ईयर में होंगे अपने कॉलेज के, अगर उन्होंने वहां से भी शुरू किया है, इफ दे गेट एनी सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप और कुछ, दे कैन स्टार्ट देयर करियर फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो पहला ये होगा मेरा उनको सजेशन कि अगर आपको प्रिवेसी में आना है, जस्ट अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ लॉ. GDPR है, GDPR अगर आपने समझ लिया तो इंटरप्रिटेशन बाकी दूसरे लॉज का बहुत आसान हो जाता है. देन लॉ जब आपने एक बार पढ़ लिया, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद आप कोशिश करो कि 1-2 कोर्सेज कर लो. कोर्सेज है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट कोर्सेज से चीजें एक्सपेडिट हो जाएगी, राइट? और अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि या तो आपने कोर्सेज किया हो या तो आपने सर्टिफिकेशन किया, तभी वो आपको इंटर्नशिप देंगे. अच्छा. ये एक ट्रेंड चल रहा है. But how can an individual get a certification without some expertise? Yeah, so certification itself is like training courses. Training courses के थ्रू आती है. Okay. तो अगर आपने ट्रेनिंग कोर्सेज ली तो वो तो कोई भी ले सकता है. Okay. किसी भी बैकग्राउंड से हो. वो that ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस है जो ट्रेनिंग करवा रही है. आप जाओ, आप सीखोगे उसमें, बट बी वेरी वाइज वाइल चूजिंग द ट्रेनिंग कोर्सेज. क्योंकि बहुत से बस ऐसे है कि जो आपने GDPR और DPDP वहां से पढ़ा है, लाइक ब्लॉग्स में पढ़े होंगे, वही सारी चीजें वो रिपीट कर देंगे. दे वोंट टीच यू एनीथिंग लाइक practical. Any course that you would recommend to go for a fresher basically? Yeah, so there are like multiple organizations, I won't name, but you can search like training or DPDPA or data protection training in India, or like DPO courses. You will get some training references. If you would like to know more, I can add that. Okay, so best way to handle that is like if people have that kind of queries, अगर आपको जानना है और कि like which courses should they opt to, drop a comment. We'll respond to that individually instead of spamming everyone. Yeah. Okay. Or else you can reach out to us on LinkedIn also and we can respond to you there. And apart from that, अभी इंडिया में क्या है ना कि उतना मैच्योर हुआ नहीं है. अभी तो जस्ट DPDP आया है, अब तो ऑर्गेनाइजेशंस जगी हैं कि अब करना है हमें इम्प्लीमेंटेशन. तो इंडिया स्पेसिफिक अभी लॉ इतने कोर्सेज और या फिर ऐसे क्रेडेंशियल्स आए नहीं है, बट यूरोप में है. मतलब अगर हम GDPR की बात करें, CIPP इज वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड. अगर CIPP है, बहुत सारे जॉब्स का तो होता है कि CIPP है, होना चाहिए मैंडेटरी, तो ही आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट होगा फॉर इंटरव्यू राउंड. अब आपने CIPP के लिए प्रिपेयर कर लिया, दैट इज अ सर्टिफिकेशन कोर्स, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही मतलब डिटेल्ड होता है. प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, लाइक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. यू हैव टू लाइक गो थ्रू दैट एग्जाम, पास द एग्जाम. अब तो पासिंग स्कोर, मतलब पहले तो और भी डिफिकल्ट होता था, बट जैसे जैसे वो एग्जाम थोड़ा पुराना होता है, मार्केट में लोग आते हैं, लोग गाइड करते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है वो. यू कैन गो फॉर दैट सर्टिफिकेशन, क्योंकि फिर उससे इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी खुल जाएगा. if you just don't want to just stick with the Indian market, GDPR के लिए CIPP कर लो और DPDPA पढ़ लो. बस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर हायरिंग लाइक जस्ट फॉर लाइक इंटर्नशिप. 2 साल का प्रोग्राम दे रहे हैं, 2-3 साल का, कि आप हमारे साथ इंटर्नशिप करो, सीखो, और फिर वो इंटर्नशिप तो PPO में लेकर जा रहे हैं. तो ये सारे प्रोग्राम्स भी आ रही है. इंडिया में अभी जस्ट मार्केट खुला ही है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है. यू कैन स्टार्ट इट राइट देयर. पढ़ो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करो, वहाँ से यू कैन ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी. Okay, I just recalled one thing because AI है ट्रेंड में,
अभी आजकल एक ट्रेंड चलता है एआई के टाइम पे ज़्यादातर सोशल मीडिया पे, जैसे जेमिनाई का आया था Yeah, चिबली आर्ट, yeah, फिर आ गया नैनो बनाना प्रो। yeah. अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले जो ट्रेंड देखा है उसमें क्या कर रहे हैं लोग, स्पेशली द पेरेंट्स एंड ऑल, छोटे बच्चे हैं उनके 1 साल 1.5 साल के बच्चे होते हैं, बेरली हु कैन वॉक प्रॉपरली, हाँ. और उनकी फोटोज डाल के एआई में दे क्रिएटिंग दोस डांस वीडियोज एंड ऑल। इन सब के पीछे डेटा प्रिवेसी पर्सपेक्टिव से व्हाट वुड यू लाइक टू से? मार्केट में ऐसे ट्रेंड्स आते रहेंगे, लोग ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, बट यू शुड बी वेरी अवेयर कि जितनी भी ये ट्रेंड्स आ रही हैं जिसमें आप अपना डेटा डाल रहे हो, बच्चों का वीडियो एक वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, बच्चों का वीडियो हो, आपकी फोटोज हो, आप फोटोज डाल के पब्लिक कर रहे हो, द कंपनी विल जिस भी टूल को आप दे रहे हो, दे विल यूज दैट डेटा. राइट। जस्ट गो थ्रू दैट देयर प्रिवेसी पॉलिसी, यू विल गेट टू नो. उनके पास ऑप्शंस होता है, क्योंकि जेमिनी और ये लोग जितने भी गूगल का अगर हम बात करें या फिर चैट जीपीटी की भी बात करें, तो दे आर गवर्न्ड बाय सम प्रिवेसी फ्रेमवर्क्स, दे हैव दैट ऑप्शंस, यू कैन गो थ्रू दैट, चेक करो कि आप अपना प्रिवेसी कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो, वेदर यू वांट टू लाइक यूज, मतलब आप चाहते भी हो कि नहीं वो एआई आपका जो डेटा है, जो वीडियो है, वो फर्दर यूज करे. राइट। अगर नहीं करना, आपको नहीं मन है, उसका ऑप्शन होता है, बस आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. जाओ प्रिवेसी पॉलिसी पढ़ो उनका, और आप उनको बोल भी सकते हो डिलीट करो मेरा डेटा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो बट देयर इज अ कैच ओवर देयर कि इट डिपेंड्स कि आप किस प्लेटफॉर्म, किस एआई टूल को यूज कर रहे हो. इफ यू आर यूजिंग समथिंग लाइक जेमिनाई और परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी, दीज आर एस्टैब्लिश्ड tools, so they are more, I mean, regulated by the regulations. But अचानक से थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन आती है एआई की, okay, and it gives you a new trend to follow and people start using it. वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे वो कंपनी शायद रेगुलेशंस को इतना सीरियसली नहीं लेती. So they maybe they are not having that privacy options also. True. People need to be aware कि वो किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, किस टूल को यूज कर रहे हैं, because some tools are good to use and some are not good to use. Exactly. So you should be very aware. पहले तो आप देखो, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर उनकी प्रिवेसी पॉलिसी ही नहीं है तो अवॉइड यूजिंग दैट. That's a red flag actually. Yeah, that's a red flag. But इंडिया में ये है ना कि लोगों को लगता है हमारा डेटा लेके करेंगे क्या, हमारे अकाउंट में कौन से ज्यादा पैसे हैं. फिर जब उनके साथ स्कैम होते हैं ना, फिर पता चलता है कि उनका डेटा कहाँ से आया था. एग्जैक्टली. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकती है, इम्पर्सोनेशन हो सकता है. बहुत सारे तरीके हैं मिसयूज करने की आपके डेटा को. सिंपल तरीका है ना इसको समझने का कि आजकल डीप फेक अटैक्स बहुत चल रहे हैं. ओके, लेट्स से आपको एक अचानक से कॉल आती है, वीडियो कॉल, द अदर पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल इज समवन हुम यू नो, बट नॉट द एक्चुअल पर्सन. उसका डीप फेक वीडियो है. वो जो डीप फेक बना, वो बना कहाँ से, डेटा पॉइंट आया कहाँ से? दैट इज बिकॉज ऑफ दीज थर्ड पार्टी टूल्स. मे बी सम हैकर हैज एक्चुअली डेवलप्ड एन एआई टूल टू ग्रैब योर, आई मीन गेट योर data, especially video data, and then using that to create your deepfakes. So you need to understand कि आप किस तरह का AI platform use कर रहे हो. I mean, try avoiding those unknown third-party AI tools जो अभी अचानक से market में आए हैं. Instead, if you still want to follow a trend, please stick to platforms like Gemini, Chat, something which is already established and known. वो भी आप देखो, उनकी प्रिवेसी पॉलिसी देखो. जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे मेरे डेटा के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था. तो आप खुद ही फिर पीछे हट जाओगे. शायद खुद ही पीछे हट जाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस. अवेयरनेस नहीं है अभी, तो पीपल शुड बी अवेयर. उनका डेटा बहुत ही यूनिक तरीके से स्कैमर्स हर दिन वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि नए नए तरीके लेके आए और डेटा को मिसयूज करे अनलॉफुल गेन और लाइक प्रॉफिट के लिए. तो प्लीज बी अवेयर बिफोर शेयरिंग योर डेटा एंड बी माइंडफुल वाइल शेयरिंग योर डेटा. और पब्लिकली तो अवॉइड ही करो, क्योंकि एक बार आपका डेटा अगर पब्लिक हो गया है तो फिर डीपीडीपीए में भी वो गवर्न नहीं होता है. फिर तो कहीं से गवर्न नहीं हो सकता. या इट्स अ सेइंग कि एक बार डेटा इंटरनेट पे चला गया तो वो चला गया, अब वापस नहीं आ सकता, वो डिलीट नहीं हो सकता कहीं से भी. वो कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा हमेशा. कहीं ना कहीं वो उसके शेयरिंग पे, उसके ट्रांसमिशन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है. कंट्रोल नहीं है. तो नेवर एवर मेक योर आप ये तो कर लोगे अपने एंड पे कि ठीक है मैंने शायद इंस्टा पे डाला था, मैंने वहां से डिलीट कर दिया, बट वहां से डिलीट हो गया और उसके बाद क्या हुआ उसका नो वन नोज अबाउट इट. यूज योर कॉन्शियसनेस बिफोर अपलोडिंग एनीथिंग ऑन द इंटरनेट एंड बी अवेयर व्हाट एग्जैक्टली यू आर अपलोडिंग एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड. बिफोर वी वाइंड अप, छोटा सा एक फन सेगमेंट टाइप से, आई मीन आई विल जस्ट आस्क यू लाइक रैपिड फायर. ओके. Give it answers in one line, one word or one line. I'll be reading a scenario basically, and you can tell me whether it's a privacy concern or just a paranormal type thing. Okay. Some people cover their laptop's camera with tape. What is it? Yeah, it's a privacy. Reasonable, not reasonable?
reasonable if you think that you have given that access permission to camera. जैसे हम zoom use करते हैं, अब उसमें अगर आपने लिख दिया कि allow while using the site, या फिर पहले तो ये option होता था कि allow और don't allow. allow किया तो पूरे time वो on रहेगा. ऑन रहता था. बट अब 3 options आ गया है, तो be mindful. अगर आपने दिया है तो एक बार जाके check कर लो. नहीं किया तो you don't have to worry. अगर at आपने least allow using while टेप the लगा site रखा तो के, better है. हाँ Okay. safe है, safe side है. If someone is reading the policy word by word, so what would you say? If you're talking about privacy policy, yeah, it's good thing to know. Companies should be aware कि थोड़ा simple करे ताकि लोगों को भी समझ में आए. Okay. अगर कोई इंसान अपना आधार नंबर भी शेयर कर देता है just to get a discount at a restaurant. Oh my God, that's like, ये बहुत ही common scenario यहाँ पे. That should not be done. Okay. That is very risky. Big red flag basically. Big red flag. If someone is blaming the ads for listening to their conversations, Yeah. what would you say? No, it's not normal. You can always control that thing by like changing your mic permission. Okay. तो YouTube को हमने mic permission दिया होगा Hmm. हमेशा के लिए, तो just turn it off. You can turn it off. Okay. Okay, so on that note we'll end the fun segment. I think that was quite insightful for today. I mean, I'm sure कईयों ने काफ़ी कुछ जाना होगा डेटा प्रिवेसी के बारे में. And if someone has got an interest to pursue a career in this domain, then please drop a comment. We will help you with a roadmap on how you can get started based on your initial journey. Okay. And for any other queries around data privacy, please again reach out to us. You can drop a comment so that we can respond to that. और अगर आपको लगता है कि ये आज के एपिसोड से you have gained some knowledge about data privacy or something was useful for you, या कुछ ऐसा जो आपको शायद किसी और के साथ भी शेयर करना चाहिए, then please do share this video with them also, so that they also get the benefit and understand the importance of data privacy actually. Okay. Thank you Sangeeta for being part of the show and sharing your expertise and sharing your knowledge with the audience. And I would like to really thank you for having me again. Thank you so much. I really love to share my whatever I know about data privacy. Okay. That's actually the objective of this podcast, that through this we are able to help the audience. उनको भी पता चले अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, अलग अलग डोमेन्स के बारे में. If someone is looking to pursue a career, तो maybe the podcast will help them understand कि ये career option उनके लिए है या नहीं है. Yeah. And if they want to pursue, then they can obviously get a path around it. Yeah. And for the general public, obviously there will be quite insightful things. कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको शायद अभी तक नहीं पता थी, and they might learn about it. So that is the main objective of doing this podcast. So on that note, we'll wind up for today. Please do like and share, and please subscribe to the channel so that you get notified for the future episodes. In the next episode, we'll be coming up with another guest who will talk about some other career option, some other domain in the industry, and उसके through hopefully you'll get another perspective of the career. So till then, stay tuned, be safe, be secure. Thank you.